गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस कड़ी के एक और पड़ाव में बैठे हैं और आप सबका खैर मकदम है। आई वेलकम यू ऑल टुडे व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग पोइट्री एंड म्यूजिक ऑफ रेजिस्टेंस। एक शेर याद आ रहा है और उसी से शुरुआत की जाए कि दुनिया में वही शख्स ताजीम के है काबिल, दुनिया में वही शख्स ताजीम के है काबिल, जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। So this is how we define poetry of resistance. This is how we understand that if we can stand up and take a call at the time when the times are tough, then we actually create songs and poetry of resistance. But before we move on, and before I thank my team at Anhad and Satakta Nagrik Adhikar Manch, I would like to invite Amrita to give a little bit of introduction where we are and what we are doing and how we are doing. And she would tell us about the entire program and the series. थैंक यू रजा जी। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारी वेबिनार सीरीज चल रही है, दिस इज हैपनिंग एज पार्ट ऑफ अ लार्जर कैंपेन जिसका नाम है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, क्विट हेट सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। And this campaign was started about 2-3 months ago by several people, including Medha Patkar, Gigi Parikh ji, Tushar Gandhi, Suneelam, and many of us. And essentially, it's a campaign to really fight divisive forces, try and defeat the climate of hate, and reclaim our constitutional rights and strive towards a vibrant democracy and defeat fascist forces as well. And there are many things happening as part of this campaign in many states. 75 kilometers yatras are being undertaken in different villages, in different cities, and in different states. And also different programs have been happening. So Anhad and Satark Nagrik Sangathan together have actually launched this webinar series wherein we've been trying to do it every week on Saturday to really provide a platform for more in-depth discussion on some of the issues that are being taken up as part of this larger campaign. And it's really a campaign that will continue, and on January 30th they'll be coming together of different yatras to Delhi on Martyr Day to also hear from experiences of the different issues and the campaigns that are taking part in this. I'll just briefly say it in Hindi also for friends who are more comfortable in Hindi. तो आप सबका आज बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो ये वेबिनार श्रृंखला चल रही है, ये एक बड़े अभियान जिसका नाम है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, उसके तहत चल रही है। और ये अभियान करीबन 2-3 महीने पहले लॉन्च हुआ था। अभियान के तहत कई अलग अलग किस्म के कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत सारे जिलों में, राज्यों में, गांव में, शहरों में यात्राएं चल रही हैं 75 किलोमीटर की, अलग अलग मुद्दों को उठाते हुए, वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए, संविधान के मुद्दों को उठाते हुए, और साथ में ही अलग प्रकार के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। जैसे सतर्क नागरिक संगठन और अनहद मिलकर एक ये वेबिनार सीरीज का आयोजित करा है, जिसमें कि हर शनिवार हम कुछ समय निकालकर चर्चा करते हैं इन डेप्थ तरीके में कि जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं उस पे एक्सपर्ट से भी सुनते हैं और आगे भी उसको कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर भी बातचीत होती है। और आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो है संघर्ष में कविताएं और संघर्ष के गीत, सो सॉन्ग्स एंड पोएट्री ऑफ रेजिस्टेंस। So thank you, Radha ji, and I hand over back to you. Shukriya, Amrita. Thanks a lot. United States, the country where liberty is a statue. And this is Para. This is Nikonar Para. And many languages have produced poetry of protest, of resistance. And we have seen that it is not only the language. When the language was not even evolved, then to the slaves in the ships, they used to clank their chains with which they were tied together.
to create a sort of music, and from that a tradition emerged, and now we see so many other, subsect of that tradition. So it is not necessarily that you need a language to protest, you need a language to, or words to say something. Even the chains with which you are tied can become a tool. But of course, language is a very, very powerful tool. And hence, when we say that we are talking of resistance, when we are talking of protest, we create songs and poetry, and through which we try to create the very desired, what shall I say, that the final assumption is to achieve success and to achieve better results through our songs and through our poetry. And when we see Indian subcontinent, Hindi and Urdu have produced numerous, stalwarts. One among them, which I'll just recite so that we go into the Hindi realm or the Hindi, areas, is Dushyant, which comes to my mind. भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ. भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ. आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा. मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह. जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रखकर छुआ. गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं. गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं. पेट भरकर गालियां दो, आह भरकर बद्दुआ. क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ. क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ. लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं. ये थे दुष्यंत. And when we say this part of the area between Ganga and Jamna, interestingly, it reaches its Sangam confluence at Allahabad. And Allahabad has produced numerous people, stalwarts, poets, writers, academicians, thinkers, and the university there has produced many important politicians who have turned the tide, who have stood against the very, establishment. And I think from there, our first, speaker comes from Anshu Malviya. He's a poet, और आपके बहुत सारी नज़में आ चुकी हैं और उसके कलेक्शन आ चुके हैं. Anshu seems to be having some internet problem. वो बार-बार disconnect हो रहे हैं. So maybe we could move on and then come back to him. Sorry. अच्छा, अंशु जी एक बार आप देखेंगे या हम दूसरे अपने उस पे जाएं? एक बार और देख लीजिए. वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे. नहीं ज्वाइन कर पा रहे. कोई बात नहीं. क्या हम नंदिता अगर हैं तो उन्हें देखें? मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं थोड़ी कश्मकश में अभी भी हूँ. कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. जब तक अंशु आते हैं तब तक मैं एक, या तो कोई किसी और को ले लीजिए, उसके बाद मैं आ जाऊंगी. अंशु आ गए हैं. इनफैक्ट मुझे क्योंकि को-होस्ट बना दिया गया है तो मैं एडमिट कर रही हूँ लोगों को. नहीं कोई मसला नहीं है. और अगर अंशु तैयार होंगे तो हम कहेंगे उनसे कि वो आए. नहीं तो एक नज्म है हमारी, हम तब तक लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे. क्या अब अंशु है हमारे साथ? वो हमें सुन पा रहे हैं? No, he is still trying to join. Okay, no problem. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये पूरा एक दौर और ऐसा गुजरा है जो कि आज़ादी से ठीक पहले, जहाँ पे उर्दू नज़मों ने बहुत बड़ी एक रवायत अपनी अंजाम दी और उसको आज़ादी की तहरीक कहते हैं, जिसके अंदर से ही निकली एक तरक्की पसंद तहरीक, और उसका भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है हमारे यहाँ. लेकिन उसी के बहुत बड़े बड़े शायर जो है, उन्होंने अपनी नए तरीके से चीज़ों को रखा और एक नए पैराडाइम्स क्रिएट करे और एक नई लैंग्वेज क्रिएट करी, और कई नारे भी दिए जो नारे बहुत मकबूल हुए, बहुत बहुत मशहूर हुए. और वो पूरी अवध से लेकर के और इलाहाबाद तक की सरजमीन है. और मुझे लगता है कि उस सरजमीन के बहुत सारे शायर जैसे कि सरदार जाफरी हैं या फिराक साहब हैं, मतलब उनका एक बड़ा उम्दा शेर है इनकलाब के ऊपर कि देख रफ्तारे इनकलाब फिराक,
देख रफ्तारे इनकलाब फिराक कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। तो ये अंदाज है फिराक साहब का, वो भी इलाहाबाद से आते थे और वहाँ बहुत बड़ा उन्होंने बहुत लंबा वक्त गुजारा। और उससे थोड़ा सा अगर हम ऊपर आते हैं तो हमें कैफी दिखाई पड़ते हैं। से शुरू करिए। तो वो कह रहे हैं अपने अंदाज में, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। तो ये हमारे अवध के थे। एंड सिमिलरली वी हैव प्लेंटी ऑफ लैंग्वेज पोइट्स। उनके इत्तेफाकन आज मेरे साथ बहुत सारी नज़में नहीं है। आई वांटेड टू हैव सम ऑफ द ट्रांसलेशंस which I thought that I can present them in English, but due to the paucity of the time, we thought like we will package this within 1.5 hours to 1 hour and 45 minutes. I thought that maybe some other time we will do a pure edition on poetry in our Indian languages, because it requires a little bit of extra attention, it requires a little bit of extra time, and it has its own idiom and its own grammar. But whereas Urdu and Hindi has very similar, hence I started from Hindi Ghazal Go, which is Dushyant, and gave a little bit of intro about Awadh. And I'm not sure whether Anshu has been able to join us. Anshu hasn't been able to join. We could either request Sumangla to go for. Should I then jump in? Yes, Sumangla, are you there? Oh, I thought. Okay, is it Nandita? जी नंदिता, आपने पहले बोला था तो मुझे लगा नहीं नंदिता आप आ गई तो रहे हैं तो फिर नहीं कोई मसला ही नहीं। हम लोग आपको आपका पहले थोड़ा सा तारुफ देते हैं। जो लोग हिंदी प्रदेश के हैं वो ये जानते होंगे कि एक पूरी परंपरा रही हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटकों की, और उसमें जन्म का बहुत बड़ा हाथ रहा, और उसमें बहुत सारे लोगों ने सफदर के बाद और उनके साथ काम किया। उनमें एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर नंदिता रही। आपने सड़क पे उतर करके वो काम किए जो कि रूबरू, जिसको कि डायरेक्ट इंटरवेंशन बोलते हैं या डायरेक्ट डायलॉग की प्रोसेस बोलते हैं, और वो इनकलाब या किसी भी ऐसे प्रोटेस्ट के लिए बहुत सख्त जरूरी है। वहां से शुरुआत करी, फिर टेलीविजन की दुनिया में रही। उस दौर में हमारी थोड़ी बहुत तारुफ रहा, वहां पे मुलाकातें रहीं और अच्छा काम भी हुआ उस दौरान। वो पूरा एक दौर था जब अच्छे किस्म का टेलीविजन होता था। फिर उसके बाद आप सिनेमा में चली गई, एंड द वे शी हैज ट्रैवल्ड द एंटायर spectrum of cinema is very, very interesting, because she comes from a performing background. From performer to a writer and a director is an entirely full journey, I must say. And she has taken a beautiful journey with her, startling roles in multiple films in different languages. So I must say and underline that she has worked in multiple languages with ease and has performed various roles. Important points, और जो कह सकते हैं कि जो चुनिंदा आपके हाल फिलहाल के 3 मकाम हैं वो बहुत अहम हैं, और वो तीनों फिल्में हैं। वो फिराक से शुरू होती हैं जो 2008 में आई, फिर मंटो जो कि एक खूबसूरत दस्तावेज है, जिसने देखी वो मतलब तारीफ के बगैर ना रह सका। वो बेहतरीन फेस्टिवल की जान रही, और अभी तक ये भी है, उस कहा जाता है कि वो फेस्टिवल की जान बहुत रही, लेकिन पब्लिकली बहुत ज्यादा नहीं देखी गई। लेकिन उसका दूसरा रीजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। नेटफ्लिक्स पे है तो आप देख सकते हैं। जी, और नेटफ्लिक्स पे है, जाहिर सी बात है, और उसको बहुत सराहा गया। बहुत बेहतरीन फिल्म है जो मंटो की जिंदगी को बयां करती है। और उसके बाद ज़्विगैटो है जो मुझे लगता है मैंने नहीं देखी है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अभी आई नहीं है, आप लोगों के पास जल्दी ही आएगी। लेकिन आप मेरा इतना लंबा इंट्रोडक्शन न दें। हाँ, और अब आप शायद नज़्म हैं। हाँ, तो वो आप जो है हमारे साथ जुड़ी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि वो अपने पुरखुसूस अंदाज में जो है कुछ सुनाएं। नंदिता, क्या अंदाज है, बहुत काम के बीच में थी, पर शबनम को ना कहना मेरी फितरत में नहीं। मेरे क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि जैसे आपने मेरा तारुफ कराया कि मैं सफदर के साथ थी, तो मैं इस परिवार से बहुत बचपन से एक तरह से जुड़ी हुई हूँ। तो एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। पर इस बहाने बहुत सारी पोएम्स
उसको पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि हम चाहते सब हैं पर कई बार पढ़ नहीं पाते हैं। तो काफी अंग्रेजी, हिंदी बहुत मैंने छान मारी और हमेशा वो एग्जैक्ट चीज नहीं मिलती है, पर इस बहाने बहुत और पढ़ लिया, तो उसका शुक्रिया। तो मैंने एक अंग्रेजी और एक हिंदी, हिंदुस्तानी 2 कविताएं हैं, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पहले अंग्रेजी सुनाती हूँ। ये एक पोलिश पोएट हैं, विस्लावा शिंबोर्स्का की, जिनको 1996 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर। इसका नाम है द एंड एंड द बिगिनिंग। After every war, someone has to clean up. Things won't straighten themselves after all. Someone has to push the rubble to the side of the road so the corpse-filled wagons can pass. Someone has to get mired in scum and ashes, sofa springs, splintered glass, and bloody rags. Someone has to drag in a girder to prop up a wall. Someone has to glaze a window, rehang a door. Photogenic it's not and takes years. All the cameras have left for another war. We'll need the bridges back and new railway stations. Sleeves will go ragged from rolling them up. Someone, broom in hand, still recalls the way it was. Someone else listens and nods with unsevered head. But already there are those nearby starting to mill about who will find it dull. From out of the bushes, sometimes someone still unearths rusted out arguments and carries them to the garbage pile. Those who knew what was going on here must make way for those who know little and less than little, and finally as little as nothing. In the grass that has overgrown causes and effects, someone must be stretched out, blade of grass in his mouth, gazing at the clouds. अब ये हम सब की, हम में से कईयों की चहेती कविता पाश की सबसे खतरनाक। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो मतलब बनता है जिसको कहते हैं, ये तो टेक्स्ट बुक हो गया। It's just a wonderful reminder. मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियां भीज कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिये की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। ये तो मैं जब भी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, मुझे ऐसे रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं कि सही में कितनी चीजें, आजकल तो खैर बहुत ही चीजें खतरनाक हो गई हैं,
मैं एक जुर्रत करूं क्या रजा? जी जी बताएं। मैंने फरमाया। 2020 में जब हम लोग घरों में बैठे थे और मुझे कविता वविता लिखना बिल्कुल नहीं आता, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करती, लेकिन एक दिन बहुत तकलीफ हो रही थी और मैंने सोचा कि कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखना, देखते हैं क्या लिखा है, लिखे। मैंने सही में इसको एक दो बार ही शायद उसको थोड़ा उस वक्त ठीक किया था, पर अभी मैंने इसको निकाला कि ऐसे ग्रुप में अगर मैं जुर्रत ना करूं तो फिर कहाँ करूं। तो मैं वो पढ़ के सुना सकती हूँ। उसका कॉन्टेक्स्ट वो दौर है, शायद आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे। इसकी कविता की स्किल पे मत जाइएगा, मेरी भावनाओं पे जाइए। इसका वो टाइटल है कुछ नया नहीं। पिछले 5 महीनों से कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मन में कलम तेजी से दौड़ती है पर कागज तक नहीं पहुंच पाती। आखिर सब कुछ कहा जा चुका है अनगिनत बार अलग अलग तरीकों से, तो नया क्या लिखूं? ये तो आम बात है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब। वैसे शहर की रूह तो दोनों में होगी, पर गरीबों की गिनती ही इतनी ज्यादा है कि चाहे अनचाहे रूह का पलड़ा उन्हीं की तरफ झुका है। पर उनकी मुफलिसी और लाचारी और हमारी बेरहमी और गद्दारी, इसमें भी कुछ नया नहीं। क्या उन औरतों, लड़कियों, बच्चों पे नहीं लिखा जा सकता जो घर के अंदर भी महफूज नहीं है? ना, ये तो और भी पुरानी बात है, सबको पता है। तो फिर किसानों की फसल के बारे में या कॉलेज स्टूडेंट्स के एग्जाम के बारे में, खदानों और फैक्ट्रियों के मजदूरों के बारे में, कश्मीर में चलती गोलियों के बारे में, पुलिस की तानाशाही के बारे में, या कम से कम उन डॉक्टर और नर्सों के बारे में जो जिंदगी दांव पे लगाए बैठे हैं? ये सब पुरानी बातें हैं, कुछ नया चाहिए। अरे है ना एक नई ताजी मसालेदार खबर, सुशांत सिंह मरा या मारा गया, रिया को सूली पे चढ़ाएं या रोज उस पे नया आरोप लगाएं? क्या ये सरकार गिराने की साजिश है या बॉलीवुड का भांडा फोड़ने की? द नेशन वांट्स टू नो। अरे ये बात तो दिन में 50 बार कही जा रही है, अब बासी हो गई है, बदबू आ रही है। जब कुछ नया नहीं तो फिर क्या जरूरत है कलम को कागज से मिलाने की? रहने दो फिलहाल उन्हें अलग अलग। पर शायद जब धीरे धीरे लोग नई पुरानी खबर छोड़ अपने जमीर को टटोलने लगे, चीखने और चिल्लाने से ज्यादा गौर से सुनने लगे, नफरत फैलाने के बजाय उसे रोकने लगे, तब शायद कुछ नया लिखने लायक होगा, कहने और सुनने लायक होगा। शुक्रिया। हाँ, बहुत खूब, कहने और सुनने लायक होगा। लेकिन बहुत उम्दा है अगर हम ये कहें और कि आप अपनी ये कवाइश ना छोड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। जब मौका मिले लिखिए। छोड़ने की बात ही नहीं है, एक अधूरा सा कुछ लिख दिया, बट यही हमारे मतलब बहुत अपनापन सा लगता है। सबको नहीं जानती पर्सनली, पर ऐसे आज के दौर में अपने सोच, अपने ख्यालात, अपने इस तरह के जज्बात हमको जोड़ता है। और ये शाम है ही कविताओं और संगीत और इनके इनके थ्रू हम लोग अपनी बात कह सकें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें, तो इसलिए जुर्रत की आगे। और ये एक एक्सटेंडेड बैठकी है, ये एक नशिस्त है आज की शाम, और आपने उसमें 4 चांद लगा दिया। शुक्रिया बहुत बहुत, और बेलौस तरीके से प्रेजेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बढ़ते हैं, मतलब जैसा लगा कि मुझे लगा कि इनकलाब की बात हुई, तो इनकलाब आएगा रफ्तार से मायूस न हो। इनकलाब आएगा रफ्तार से मायूस न हो, बहुत आहिस्ता नहीं, बहुत तेज नहीं। तो वो पूरा ख्याल है अली सरदार जाफरी साहब का। तो खैर बहरहाल हम बात कर रहे थे, अगर अंशु हमारे साथ हैं तो हम बात कर रहे थे इलाहाबाद की, गंगा जमुना की, जहाँ चीजें आकर के मिलती हैं, जहाँ संगम होता है, और जहाँ एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जिसकी बहुत सारी यादें हैं सब लोगों की। वहाँ बड़े बड़े नेता वहां से आए, उन्होंने खड़े होकर के एस्टैब्लिशमेंट को चुनौती दी और एक नए किस्म की जबान राजनीति में भी लिखी। वहां से जो कवि आए, उन्होंने चाहे वो मधुशाला लिखी या उन्होंने फिराक साहब ने जैसे अपनी कलम में जो है रोमांटिक शायरी को वो दिया। तो इलाहाबाद शहरी ऐसा है कि जो संगम का शहर है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अंशु मालवीय साहब से कहूंगा कि वो आए और अपनी नज़मों से हमें नवाजें,
जिनकी के नज़मों में बहुत कुछ उस आज के समय की और आज के दौर की जो झलक है वो उभर करके आती है। अंशु मालवीय जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबको नमस्कार। 2 नज़में सुनाऊंगा। कुछ नज़में लिखी थी 2-3 साल पहले अर्जियां नाम से। तो उसमें से एक नज़्म है मॉब लिंचिंग के लिए अर्जी। सुना रहा हूं, मॉब लिंचिंग के लिए अर्जी। मुझे महसूस करने दो कि मधु हूं मैं, मेरा चेहरा किसी पेड़ की गांठ की तरह सख्त और चेहराया हुआ है। मुझे महसूस करने दो कि मधु हूं मैं, मेरा चेहरा किसी पेड़ की गांठ की तरह सख्त और चेहराया हुआ है। मेरे जुड़े हुए हाथ पीले सूखे पत्ते की तरह कांप रहे हैं। मुझे घेर कर खुशी में किलकारी मारती भीड़ के रक्तिम दांत और मोबाइल के फ्लैश चमक रहे हैं। एक मुट्ठी चावल की चोरी का इल्जाम है मुझ पर। एक मुट्ठी चावल की चोरी का इल्जाम है मुझ पर भूख से नहीं मरूंगा मैं, मुझे हिंसा की भूख मार देगी। मुझे महसूस करने दो कि मधु हूं मैं। मुझे महसूस करने दो कि पहलू खान नाम है मेरा, मैं भीड़ के तेज बढ़ते कदमों के सामने घिसट रहा हूं, एक चुल्लू पानी की अरदास करता। ताहद्दे नजर फैले हुए खेत दश्ते करबला है, हुकूमत यजीद में मजलूमों को हराम है पानी। हुकूमत यजीद में मजलूमों को हराम है पानी। मैं पानी मांगता हूं, भीड़ खून थूकती है। हलक में कांटे हैं पर प्यास से नहीं मरूंगा मैं। हलक में कांटे हैं पर प्यास से नहीं मरूंगा मैं। मुझे इन आंखों में बगुलों की तरह उमड़ती लहू की प्यास मार देगी। मुझे महसूस करने दो कि पहलू खान नाम है मेरा। मुझे महसूस करने दो कि मरे मवेशी की खाल उतारने वाला किशोर हूं मैं। मुझे नंगा कर पेड़ से बांध खाल उतारी जा रही है मेरी, तने की छाल की तरह। इतना नंगा हूं कि खाल भी उतर गई है। इतना नंगा हूं कि खाल भी उतर गई है, लेकिन लज्जा से नहीं मरूंगा मैं। मुझे इस द्विज राष्ट्र का नंगा नाच मार देगा। मुझे इस द्विज राष्ट्र का नंगा नाच मार देगा। मुझे महसूस करने दो, वही किशोर हूं मैं, नाम कुजात है। मुझे महसूस करने दो कि आरा के तमाशों में नाचने वाली गैर इज्जतदार औरत हूं मैं। गलियों में भाग रही हूं भयभीत, जैसे बारिश के पानी के थपेड़ों पर कागज की नाव भागती है, डर से लथपथ भंवर में डूबने को तैयार। लेकिन डूब कर नहीं मरूंगी मैं, मुझे ये वीर्य प्लावित समाज मार देगा। लेकिन डूब कर नहीं मरूंगी मैं, मुझे ये वीर्य प्लावित समाज मार देगा। मुझे महसूस करने दो, मुझे महसूस करने दो, मुझे महसूस करने दो। अदना सा कवि हूं मैं, कहन मेरी ओछी है। शब्दों के भयानक अकाल से गुजरता मैं कुंठित होकर दुस्साहसिक अनुभवों की ओर भागता हूं। मॉब लिंचिंग के लिए मेरी अर्जी कबूल हो साहिब। मुझे महसूस करने दो कि भीड़ से डर कर भाग रहा हूं मैं महसूस करना चाहता हूं जैसे करता है विवेक, भय से दुम दबाए टांगों के बीच, मुंह से झाग फेंकता घिरा हुआ अंधविश्वासी भीड़ के चक्रव्यूह में। मैं महसूस करना चाहता हूं जैसे करता है सत्य, घुटनों से पेट दबाए रीढ़ में ठंडक महसूस करता आखिरी हमले के इंतजार में।
मैं महसूस करना चाहता हूँ जैसे करती है शांति अपने बदन के चीथड़े समेटती लिजलिजी मौत के साए में। मैं महसूस करना चाहता हूँ जैसे करता है ईमान नमक के दरबार में अपने घावों को पेश करते हुए। मुझे महसूस करने दो कि एहसास की इस जमहूरियत का आखिरी शहरी हूं मैं। मेरे अंशु जी आप म्यूट हो गए हैं। जी मुझे महसूस करने दो कि एहसास की इस जमहूरियत का आखिरी शहरी हूं मैं। मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी ये जमहूर। मॉब लिंचिंग के लिए मेरी अर्जी कबूल हो साहब। दूसरी कविता जी जी जिस दौर की कविता भी नंदिता जी सुना रही थी, जब ये सारे देश में चिताएं जल रही थी महामारी के दौरान, तो एक महाभारत में प्रसंग है खांडव वन के जलने का, जिसे कृष्ण और अर्जुन ने दिल्ली में जो वन हुआ करता था, खांडव वन दिल्ली के पास, जिसे अर्जुन और कृष्ण ने जलाया था, तो वो प्रतीक लेते हुए ये कविता लिखी गई है। खांडव वन जल रहा है, खांडव वन जल रहा है धर्मराज। वन से उठता गाढ़ा काला धुआं हमारी नाक की सुरंगों से होता हुआ फेफड़ों के गहवरों में बैठता जाता है हिंसक पशुओं की मानिंद। वन से उठता गाढ़ा काला धुआं हमारी नाक की सुरंगों से होता हुआ फेफड़ों के गहवरों में बैठता जाता है हिंस्र पशुओं की मानिंद। अंधेरे में चमकती हैं अंगारों सी आंखें, भय से घिघी बंध जाती है हमारी, और हमारे फेफड़े सूखे हुए अंगूर के गुच्छों की तरह स्याह बदरंग रस टपकाते हैं। अंधेरे में चमकती हैं अंगारों सी आंखें, भय से घिघी बंध जाती है हमारी, और हमारे फेफड़े सूखे हुए अंगूर के गुच्छों की तरह स्याह बदरंग रस टपकाते हैं। राष्ट्र का दम घुट रहा है योगीराज, खांडव वन जल रहा है। नगर सेठों के लिप्सा यज्ञों से तृप्त, राजाओं के वासना यज्ञों से कामश्लत ब्राह्मण वेशधारी अग्नि को ऑक्सीजन चाहिए अपने यौवन को दहकाने के लिए। नगर सेठों के लिप्सा यज्ञों से तृप्त, राजाओं के वासना यज्ञों से कामश्लत ब्राह्मण वेशधारी अग्नि को ऑक्सीजन चाहिए अपने यौवन को दहकाने के लिए। उसे चाहिए ताजा पेड़ों का लहू, उसे चाहिए पशुओं की चिराइंद, उसे चाहिए इंसानी चीख, लकड़ियों की चिटकती कातर पुक। अंशु, आप दोबारा खामोश हो गए हैं। I think it has frozen. हाँ, कृष्ण बोला, काम हो जाएगा। अर्जुन ने मूछ पर हाथ फेरा और खांडव वन दहक उठा। खांडव वन जल रहा है योगेश्वर, दम घुटने से भाग रहे हैं पशु रंभाते हुए, परों से पकड़कर चिड़ियों को वापस लपटों में पटक रहा है अग्नि। भील, कोल, किरात, नाग, अनागरिक जन एक चुल्लू ऑक्सीजन के लिए छटपटाते हुए भाग रहे हैं जंगल से बाहर। त्राहिमाम, खांडव वन की चौहद्दी पर खड़ा है कृष्ण।
खांडव वन की चौहद्दी पर खड़ा है कृष्ण, मैरे से मत हैं आंखें, खड़ा है अर्जुन ड्यूटी पर, आग से बचकर भागते लोगों को मौत के घाट उतारता, वापस अग्नि कुंड में झोंकता। हमें ऑक्सीजन बख्श दो महाभारत के विजेताओं, हमें ऑक्सीजन बख्श दो महाभारत के विजेताओं। ये भारत तुम्हारा, ये महाभारत तुम्हारा, ये धरती, ये धन धान्य, ये धर्म, ये नीति, गत आगत सब तुम्हारा। हमें बस एक सिलेंडर ऑक्सीजन चाहिए मधुसूदन, हमें बस एक सिलेंडर ऑक्सीजन चाहिए मधुसूदन। ये ऑक्सीजन अग्नि का खाद्य नहीं, हमारा जीवन है। तुमने कहा था ना, अग्नि आत्मा को नहीं जला सकता, लेकिन ये वन हमारी आत्मा था और अब ये जल रहा है। खांडव वन जल रहा है गीतेश्वर, खांडव वन एक विशाल चिता जैसा धू धू कर जल रहा है। शुक्रिया। हाँ अंशु जी, बहुत अच्छा। ये अंदाज में आपने जिस अंदाज में तहत लफ्ज में पढ़ा वो बहुत बहुत ही खूबसूरत, और मुझे महसूस करने दो, ये काफी दिन तक रहेगा साथ। पता नहीं क्यों मुझे बाद में पढ़नी थी, लेकिन मुझे लगा आपकी नजर कर दूं मैं। एक छोटी सी नज्म है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी नजर है अंशु जी, और मैं चाहूंगा कि ये भी एक प्रतीकात्मक वो है, आप समझ जाएंगे। इसका उन्वान है एक्सीडेंट। जब से लौटी है, जब से लौटी है 2 मिनट का मौन धारण करके स्कूल से मेरी बिटिया, जब से लौटी है 2 मिनट का मौन धारण करके स्कूल से मेरी बिटिया, तब से एक सवाल है उसके जहन में, कैसे हो गया 150 बच्चों का एक्सीडेंट, कैसे हो गया 150 बच्चों का एक्सीडेंट, कौन चला रहा था इतनी बड़ी बस, मुझसे पूछ ही बैठती है, ये एक्सीडेंट था या लापरवाही, ये एक्सीडेंट था या लापरवाही। 150 बच्चों वाली बस तो बहुत बड़ी होती है, मौन से पहले बताई गई थी 150 बच्चों के एक्सीडेंट की कहानी। क्या ड्राइवर बच गया, क्या ड्राइवर बच गया, पूछकर ये मुझसे उठा एक खिलौना चली जाती है खेलने, जवाब कमरे में सन खड़ा रह जाता है, हाँ हम ही तो चला रहे थे इतनी बड़ी बस, 150 बच्चों से खचाखच भरी बस, बाहर खेल रहे बच्चों का शोर धीरे धीरे कमरे में रिसने लगता है। एक्सीडेंट। तो नाउ आई शैल, जी शुक्रिया अंश जी। और साथियों, लेट्स मूव टू आवर next speaker and next person. She has done a lot of work in terms of documentation, has been an important signature as far as the studies of the music and the documentation of the theatre traditions are concerned. उनका बहुत उम्दा काम है इप्टा के ऊपर, जो हम सब ने कभी ना कभी रेफर किया है, और she has taught at Ambedkar University till recently. And I'm inviting Sumangla Damodaran. I think she will take some time to speak and then she will present some songs. Sumangla, over to you. Thank you, Raza ji, and thank you, Shabnam, Amrita, and others for inviting me. मतलब मैं तो कोई external person नहीं हूँ. I have been with social movements for almost 40 years now in Delhi. So what I thought I'll do is, पहले actually मैं शुरुआत करती हूँ एक गाने से, और ये रजा जी ने इप्टा के बारे में कहा, तो based on my research on music of IPTA, 1940s और 50s के इप्टा के गाने काफी सारी भाषाओं में मैंने इकट्ठा किया था, और कुछ गाने जो है मैं गाती भी हूँ उस आर्काइव में से। तो एक ऐसा गाना मैं पहले पेश करूंगी, वो है
जलियांवाला बाग कांड के बाद लिखा गया था. And it is not known who had written this song. The poet is anonymous, but this song was actually discovered by the IPTA Central Squad in Mumbai in the early 1940s. And वहाँ पे Bombay के Central Squad में one of the very well-known singers, very young girl at that time, was Preeti Sarkar. प्रीति सरकार के बारे में रविशंकर ने उस वक्त कहा था कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन द कंट्री. उसके बाद शी वाज इन्वॉल्व्ड विद थिएटर एंड फिल्म आल्सो टू सम एक्सटेंट इन बंगाल. लेटर ऑन शी वाज नोन एज प्रीति बैनर्जी. तो 2007 में मैं ये गाने जब इकट्ठे कर रही थी तो उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये गाना मुझे सिखाया था. शी वाज ऑलरेडी इन हर 80s एट दैट टाइम. So this is, it's called दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना. दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना. दिन खून के हमारे सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में अब गुल खिला के जाना. दिन खून के हमारे गोली खा के सोए जलियान बाग में हम, सूनी पड़ी खबर पर दिया जला के जाना. दिन खून के हमारे हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना. दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना. दिन खून के हमारे. So I'll say a little bit about what I feel about the most recent phase of the music of resistance in India a little bit. My own work has been on the music of resistance in the late colonial period and also in the immediate post-independence period. And we all know that that particular period, the 40s and the 50s, and to some extent the 60s, was extremely vibrant. In the sense that not only did very large numbers of artists align themselves with revolutionary movements, लेकिन बहुत अलग-अलग किस्म के गाने लिखे गए और परफॉर्म किए गए थे उस दौरान. तो एक तरह से देखा जाए तो वो इमीडिएट प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के पीरियड में जिस तरह के गाने लिखे गए थे वो उस तरह का रेंज उसके बाद पाया नहीं गया काफी दिनों तक.
But if we actually look at what has happened over the past 3 years or so in India, things have changed substantially, and that's what I thought I'll say a little bit about in terms of what have been the big contributions of musically of this particular period, that is the last 3 or 4 years. So there has been a big explosion of forms. तो जिस तरह का रेंज हमने देखा म्यूजिक ऑफ रेजिस्टेंस में वो एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान, उससे थोड़ा जस्ट लिटिल बिफोर द एंटी सीए प्रोटेस्ट, एंड आल्सो इन द पीरियड during the farmers movement, even despite the lockdown, wherever movements were building up in different parts of the country, one of the things that we see is that there has been an explosion of different kinds of forms. So whether it is classical songs, whether it is music which has been aligned with religious identities, but at the same time standing for secular causes, whether it is folk forms, whether it is rap, pop, all kinds of Indo-Western formats, this is something that has been quite unusual and refreshing in this more recent period. And is through all these different kinds of forms, and मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ इसके ऊपर contemporary music trends के बारे में, ये देखा जाता है कि the idea of the nation, जिसको question किया जा रहा है कि, I mean, the idea of the anti-national which is being used to brand all kinds of people in this country, it is these very people who are actually reviving the idea of the nation in some sense in multiple ways. So from classical forms on the one hand to forms like rap or hip hop in different parts of the country, and extremely spontaneously. And we saw that kind of spontaneity at the time of the anti-CAA protests. The idea of the nation, and in terms of all the different kinds of identities that we have in this country, is being represented by poets and musicians very substantially, quite similar to what was happening during the independence movement and soon after that. So this is one thing that I wanted to say. The second aspect, which I think has been very significant, is that something that did not happen very easily in India, that many of these forms also now occupy the same stage. It's very rarely that a classical musician would usually perform with I couldn't have imagined this happening, that a classical musician would perform with a rap artist. But again, this is something that we saw during the anti-CAA protests. And these are not musicians who are necessarily aligned with political movements. People who were spontaneously responding to what was happening in the country, found it necessary to share their stage with anyone else who was responding in similar kinds of ways. So artistically and aesthetically, I think the last 4 years have been quite special, even though many of us feel defeated, many of us feel despondent, we feel, as if we've been driven into a corner to a very large extent. But I think the movements over the past 4 years have actually thrown up very refreshing and promising trends in the world of protest poetry and protest music. So these are 2 points that I wanted to make over here, and I'll sing another song and end with that. ये जो गाना है, this is I have composed it out of Faiz Ahmed Faiz poem. Some of my friends here have heard it before. It was a poem which was not composed into a song before, as far as I know. It's called Ab Tum Hi Kaho Kya Karna Hai. And I found that poem particularly attractive because he doesn't say we have the answers. And as long as that spirit of inquiry is there, as long as that uncertainty is there in the artist's mind, as long as we don't sink into responses that we know how to do something, I think that is the way in which art will always continue to have potential and have the kind of mobilizational capacity that it should have, and we are seeing in different parts of the world today. So I'll end my presentation with this song.
माफ कीजिए, गला थोड़ा सा खराब है। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है, अब कैसे पार उतरना है। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है, अब कैसे पार उतरना है। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, क्या कितना कसबल बाहों में, लहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था दो हाथ उठे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ हर धारे में, ऐसा न हुआ हर धारे में, कुछ अनदेखी मझधारे थी, कुछ माझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। अब जो भी चाहो छान करो, अब जो भी चाहो छान करो, अब जितने चाहो दोष धरो, नदिया भी वही है नाव वही, नदिया भी वही है नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब तुम ही कहो क्या करना है, अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है, अब कैसे पार उतरना है। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू सुमंगला। ये घाव कैसे भरना है, इंडीड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बर्बाद हैं लेकिन सदाए इनकलाब आए, वहीं से वो पुकार उठेगा जो जर्रा जहां होगा। अली सरदार जाफरी साहब। और जब हम बात करते हैं दिल्ली की, अभी सुमंगला ने जैसे बात की, नशिस्तों में और बैठकों में हम सुनते आए हैं सुमंगला को भी, और एक और उर्दू के बड़े मशहूर हमारे मतलब बुजुर्ग कहा जाए, मैं उन्हें बुजुर्ग कह रहा हूँ, गौहर रजा साहब को, और मुझे लगता है कि सबका इशारा उधर होगा। मुझे लगता है वो इससे बुरा ना माने तो बेहतर हो, लेकिन वो हमारे बुजुर्ग हैं और वो जिस अंदाज में अपनी बात रखते हैं, वो एक खास किस्म का तहत लफ्ज का एक फॉर्मेट है जो अवध में पैदा हुआ, खड़ी बोली में बहुत अच्छे ढंग से उसने परवाज पाई और उसको उर्दू ज़बान में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पेश करा। तो पेश करने की भी उनके खास अंदाज है जिस पे थोड़ी बहुत गुफ्तगू होनी चाहिए, बात होनी चाहिए।
लेकिन उससे बड़ी बात है कि उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो फिल्में उन्होंने बनाई, उससे लोग वाकिफ हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो एक पूरी तहरीक जो कि तरक्की पसंद तहरीक थी, उससे जुड़े रहे और उसके एक नुमाया अंदाज में एक नुमाया नाम उभर करके आए। और हमें लगता है कि गौहर साहब खुद अब अपने अंदाज में, खास अंदाज में एक दो नज़्में सुनाएं तो हमारा बहुत बहुत इज्जत अफजाई होगी हमारी। बेहद शुक्रिया रगा, इतना जेनरस इंट्रोडक्शन पहले कभी नहीं मिला था मुझे, खास तौर से बुजुर्गी का ओहदा मैं बिल्कुल इसको दिल से लगा के रखूंगा। पहली नज्म जो काफी जमाना पहले लिखी थी, बहुत शायरों ने दुआ लिखी है, मुझे भी एक दुआ लिखनी पड़ी, लेकिन फैज अहमद फैज की तरह से ये दुआ शुरू में नहीं आती कलाम के, ये ऑलमोस्ट आखिर में आती है मेरी किताब में। दुआ है, लिखना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि इतनी दुआएं लिखी गई हैं कि उनमें कुछ नयापन जिसकी बात नंदिता कर रही थी वो ढूंढना, तलाश करना बड़ा मुश्किल था। पर हमारा समाज आजकल, जैसे सुमंगला ने कहा, लिखने के लिए बहुत कुछ दे रहा है, और खास तौर से अगर थोड़ा सा भी आपका जहन हसास है तो हमारे नौजवान शायर कमाल कर रहे हैं। एक बार फिर से दुआ, काश ये बेटियां बिगड़ जाएं, काश ये बेटियां बिगड़ जाएं, इतनी बिगड़ें कि ये बिफर जाएं, उन पे बिफरें जो तीरो तीशा लिए राह में बुन रहे हैं दारो रसन, और हर आजमाइश दारो रसन इनको रस्ते की धूल लगने लगे। काश ऐसा हो अपने चेहरे से आंचलों को झटक के सबसे कहें, जुल्म की हद जो तुमने खींची है उसको पीछे कभी का छोड़ चुके, जुल्म की हद जो तुमने खींची है उसको पीछे कभी का छोड़ चुके। काश चेहरे से खौफ का ये हिजाब यक बजक किस तरह पिघल जाए, तमतमा उठे ये रुखे रोशन, दिल का हर तार टूटने सा लगे। काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, सहमी आंखों में कहर की बिजलियां कड़क उठें और मांगे ये सारी दुनिया से एक एक करके हर गुनाह का हिसाब, एक एक करके हर गुनाह का हिसाब, वो गुनाह जो कभी किए ही नहीं, वो गुनाह जो कभी किए ही नहीं, और उनका भी जो जरूरी, वो गुनाह जो कभी किए ही नहीं और उनका भी जो जरूरी है। काश ऐसा हो मेरे दिल की कसक इनके नाजुक लबों से फूट पड़े, काश ऐसा मेरे दिल की कसक इनके नाजुक लबों से फूट पड़े। दोस्तों, एक और नज्म, और ये नज्म दिल्ली के हालिया राइट्स जब हुए, दंगे हुए, उसके बाद लिखी थी। इसका ट्रांसलेशन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा और उसके बाद ये दुनिया की कई जबानों में ट्रांसलेट हुई। शायद इस पे किसी को खुश होना चाहिए था, लेकिन मेरे लिए ये बहुत दुख की बात थी कि दुनिया के और हिस्सों में भी लोगों ने वो नज्म जो दिल्ली के राइट्स के ऊपर लिखी जाए अपनी समझी। यानी ऐसी नज्म को पढ़ना भी मुश्किल होता है, ऐसी नज्म को शायद दफना देना चाहिए। अगर समाज बदल जाए तो जाहिर है कि ऐसी नज्में दफना ही देनी चाहिए। पर यह झटका लगा बहुत कि दूसरे समाजों के अंदर भी वो कुछ हो रहा है जो दिल्ली के एक कोने में कभी हुआ था। गवाही, नज्म का टाइटल है गवाही। गवाही दो कि तुम उस दौर से गुजरे हो जब दौरे खिज़ां था,
गवाही दो कि तुम उस दौर से गुजरे हो जब दौरे खिज़ां था, गवाही दो कि बहते वक्त के धारे बहुत संगीन थे तब, बहाव तेज था और तैरना मुश्किल था बेहद। गवाही दो कि तुम उस दौर से गुजरे हो जब हुक्काम ने खुद को खुदा समझा, गवाही दो कि तुम मौजूद थे जब इस वतन के पासबानों ने अंधेरी रात में जलगार बोला था, हर एक शहरी को सत्वारा किया था। गवाही दो अंधेरी रात थी और मुल्क में डाका पड़ा था, सफ़ें जब बिछ चुकी, हर जेब खाली हो चुकी, जब गरीबों के लहू से रोटियां तक छीन ली थी। गवाही दो जुनून को सरबरहना, घरों में बस्तियों में घूमता देखा है तुमने। गवाही दो जुनून को सरबरहना, घरों में बस्तियों में घूमता देखा है तुमने। गवाही दो कि नफरत साथ थी उसके, गवाही दो इसी नफरत में उनके घर जलाए जो अपने हक की खातिर शाहराहों पर खड़े थे। गवाही दो वो सहमे लोग देखे हैं कि जिनके घर जले थे, गवाही दो दुकानों, दरसगाहों और घरों की राख पैरों से लिपट कर रो रही थी। दोस्तों, जब वहां से लौटा था मैं उस एरिया से, तो घर तक वो राख चप्पल के साथ वापस लौट के आई। गवाही दो वो दुकानों, दरसगाहों और घरों की राख पैरों से लिपट कर रो रही थी। गवाही दो कि शाहों की अदालत नफरतों से भर चुकी है, अदालत मुजरिमों के कटघरे खड़ी है हाथ बांधे। सही इल्जाम है इन मुंसिफों पर, किताबों और कलम को बेच डाला, मुंसिफी को बेच डाला। गवाही दो ये सब सस्ता बिकाता, गवाही दो ये सब सस्ता बिकाता। गवाही दो कि अब इंसाफ जनता की अदालत में खड़ा है। गवाही दो यकीन रखो, गवाही दो यकीन रखो कि इस दौरे खिज़ां में भी तुम्हारी हर गवाही दर्ज होगी। गवाही दो यकीन रखो कि इस दौरे खिज़ां में भी तुम्हारी हर गवाही दर्ज होगी। तुम्हारी हर गवाही पर यहाँ इंसाफ होगा, तुम्हारी हर गवाही से गरेबां चाक हैं जितने सिलेंगे। तुम्हारी हर गवाही से बहारें अपने पैराहन की सेवाइश करेंगी। तुम्हारी हर गवाही अगली नस्लों के लिए राहों उजियारा बिखेरेगी। गवाही दो कि तुम पर फर्ज है ये, गवाही दो कि तुम पर कर्ज है ये। बहुत शुक्रिया रजा। शुक्रिया बहुत बहुत गौहर साहब। गवाही दो, ये जो आपने नज्म से मंजर कशी की है, ये वाकई मेरी तो सुनी हुई थी पहले, लेकिन जितनी बार सुनता हूँ मुझे आपके चेहरे पे जो हल्का सा एक जलाल सा आया, वो बहुत काबिल गौर है। दूसरे लोग देखते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आप पे तारी हो जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत उम्दा नज्म है, और हम इस सिलसिले को, आज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब किसी गीतकार को बुलाते हैं। कलादास डेहरिया साहब हैं हमारे साथ, जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी काम कर रहे हैं, और रेला ग्रुप के साथ उनके बहुत सारे गीत हैं और जो उन्होंने अपनी धुनों में बनाए हुए हैं, और उनका बड़ा काम है, इनफैक्ट a tradition of protest songs to fight against casteism, capitalism and discrimination, and they have formed a very interesting group in Chhattisgarh. I invite कलादास डेहरिया साहब। कलादास साहब, आपकी तरफ है अब शम्मे महफिल। जी, मैं आप सभी को जिंदाबाद। मैं छत्तीसगढ़ में शंकर गुहा नियोगी के संगठन से आता हूं, और 1993 से मैं ये गीतों का, कविता का काम मैं लगातार करते आ रहा हूं। और मैं एक मजदूर हूं, और मजदूर जो देखता है उस तरीके से वो लिखता है, और मैं मजदूर होने के नाते मैं जो देखता हूं वो मैं लिखता हूं, कोशिश करता हूं। साथियों, एक तरीके से
आज जो जिस दौर में हम जी रहे हैं और जिस चीज के लिए आज एक यात्रा निकली है, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। और आज पूरे देश के अंदर एक नफरतों का एक बयार सा चल रहा है और जिसपे हम सब उसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो मैं जिस इससे आता हूं उससे मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो देखता हूं उसको लिखता हूं, उस लिखने के लिहाज से मैं एक कविता कहूंगा और एक छोटा सा एक गीत रखूंगा। मेरी कविता की शुरुआत है। मेरा आंख बड़ा धोखा खाया, सामने वालों ने बहुत सताया। मेरा आंख बड़ा धोखा खाया, सामने वालों ने बहुत सताया। मैंने खून पसीना बहाया, कड़ी मेहनत की, बदले में डांट फटकार पाया, दुख और भूख पाया। मेरा आंख बड़ा धोखा खाया, सामने वालों ने बहुत सताया। मेरा आंख बड़ा धोखा खाया, सामने वालों ने बहुत सताया। मैं क्या क्या सपने संजोया था, मैं क्या क्या सपने संजोया था, अपने आप को समर्पित कर डुबोया था। मुझे नहीं मालूम था कि सामने वाला इतना क्रूर है। मेहनत के बदले कुछ मांगा, मेहनत के बदले कुछ मांगा तो जेल और हाथ में हथकड़ी पाया। मेरा आंख बड़ा धोखा खाया, सामने वालों ने बहुत सताया। मैं अपनी डिग्री लेकर साहब नौकरी मिलेगा आवेदन किया। मैं अपनी डिग्री लेकर साहब नौकरी मिलेगा आवेदन किया। बड़ी मुश्किल से फॉर्म भरने का पैसा जुटाया। बदले में पद खाली नहीं है, बदले में पद खाली नहीं है। क्या लाखों रुपया घूस है, क्या लाखों रुपया घूस है? बस खाली हाथ, आशा में निराशा, बस खाली हाथ, आशा में निराशा। आंखों में बहते हुए आंसू पाया। मेरा आंख बड़ा धोखा खाया, सामने वालों ने बहुत सताया। मैं बड़ा सपना संजोकर बेटा को पढ़ाया लिखाया। कर्जा लेकर जमीन बेचकर डिग्री कराया, कर्जा लेकर जमीन बेचकर डिग्री कराया। मुझे नहीं मालूम था यह क्रूर व्यवस्था इतना सताएगा। मुझे नहीं मालूम था यह क्रूर व्यवस्था इतना सताएगा। बेटा धुतकार पाएगा, निराशा हाथ आया। बेटा जहर खा लिया, बेटा का मौत सपना चकनाचूर। बेटा का मौत सपना चकनाचूर। बस इन हाथों में जवान बेटे का लाश पाया। पूरे जीवन के सपना को शमशान में दफनाया। मेरा आंख बड़ा धोखा खाया, सामने वालों ने बहुत सताया। गलत कामों के खिलाफ बहन आवाज उठाई, गलत कामों के खिलाफ बहन आवाज उठाई। महिलाओं को इज्जत से जीने का अधिकार दो, महिलाओं को इज्जत से जीने का अधिकार दो। काम के बदले वाजिब दाम दो। गुंडों बदमाशों पर रोक लगाओ, नारा लगाई। गुंडों बदमाशों पर रोक लगाओ, नारा लगाई। बस फिर क्या, अशांति फैलाने के बहाने, बस फिर क्या, अशांति फैलाने के बहाने। भद्दी भद्दी गालियां, बेइज्जती, बलात्कार का शिकार हाथ आया। रोती बिलखती आवाज को चार दीवारी के पीछे कैद होते हुए पाया। मेरा आंख बड़ा धोखा खाया, सामने वालों ने बहुत सताया, सामने वालों ने बहुत सताया। मुझे मंदिर में फंसाया, मुझे मंदिर में फंसाया, भाई को मस्जिद में फंसाया। मुझे मंदिर में फंसाया, भाई को मस्जिद में फंसाया। भाई के हाथों भाई को मारने का गुर सिखाया।
भाई के हाथों भाई को मारने का गुर सिखाया। भाई नहीं, यह तुम्हारा कट्टर दुश्मन है। भाई नहीं है, यह तुम्हारा कट्टर दुश्मन है। पाठ पढ़ाया, फिर क्या? समानता, एकता, भाईचारा को तहस नहस होते पाया। फिर क्या? समानता, एकता, भाईचारा को तहस नहस होते हुए पाया। मेरा आंख बड़ा धोखा खाया, सामने वालों ने बहुत सताया। मेरा आंख बड़ा धोखा खाया, सामने वालों ने बहुत सताया। सामने वालों ने बहुत सताया। ये मेरा एक कविता था और एक गीत, बस एक छोटा सा एक अंतरा है। और वो ये गीत उस समय का है, एक जनकवि फागुराम जी हुआ करते थे योगी जी के समय में। वो फागुराम जी का एक लिखा हुआ है, जब अयोध्या का मंदिर को ढहाने चले थे, उस समय का एक अंतरे का गीत है। वो गीत आपके बीच में कहना चाहूंगा, और वो छत्तीसगढ़ी में। अरे जनता के लहू पियैया ने तमन, अरे जनता के लहू पियैया ने तमन, धर्म के देवा थे दुहाई। जागो किसान, जागो मजदूर, जागो मोर बहिनी भाई। अरे जागो किसान, जागो मजदूर, जागो मोर बहिनी भाई। अरे जनता के लहू पियैया ने तमन, अरे जनता के लहू पियैया ने तमन, और धर्म के देवा थे दुहाई। अरे जागो किसान, जागो मजदूर, जागो मोर बहिनी भाई। अरे जागो किसान, जागो मजदूर, जागो मोर बहिनी भाई। अरे राम के नाम लेवैया ने तमन, अरे दंगा खूब करावत हैं। अरे राम के नाम लेवैया ने तमन, अरे दंगा खूब करावत हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाईला आपस में लड़वावत हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाईला आपस में लड़वावत हैं। अरे जय बजरंगी, जय बम बम भोला। अरे जय बजरंगी, जय बम बम भोला। अरे यही मने दंगाई। अरे जागो किसान, जागो मजदूर, जागो मोर बहिनी भाई। अरे जागो किसान, जागो मजदूर, जागो मोर बहिनी भाई। अरे जनता के लहू पियैया ने तमन, अरे जनता के लहू पियैया ने तमन, और धर्म के देवा थे दुहाई। जागो किसान, जागो मजदूर, जागो मोर बहिनी भाई। अरे जागो किसान, जागो मजदूर, जागो मोर बहिनी भाई। साथियों, ये मेरे तरफ से आपके बीच में था। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एक सांस्कृतिक धरोहर को तहस नहस किया जा रहा है, आज के समय में हम पूरी तरीके से एक सांस्कृतिक गुलामी की तरफ है, और हमें नए नए तरीके से एक बाजारवाद की तरफ धकेला जा रहा है। आज के जो गीत हम सुनते हैं, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे और तरह तरह के गीत हम जब सुनते हैं, तो वो गीत कहाँ जा रहा है? एक लड़की के ऊपर सब गाने होते हैं, बाकी नदियां, झरना, तमाम तरीके की मेहनत का, 10 लोगों का, मजदूरों का लूट और शोषण और दमन अत्याचार, ये कहीं लिखा नहीं जाता लोकगीतों में। आज उन गीतों को सहेजने की जरूरत है। जैसे कि एक पुराने समय में, उस समय छत्तीसगढ़ी में एक गीत लिखा जाता था कि महंगाई के खिलाफ, ए महंगाई के मारे गुलेची कमर टूट गई ना। आज वो लिखा नहीं जाता। आज जो लिखने वालों की संख्या कम हो रही है। आइए नौजवान साथियों, इस चीज को आगे बढ़ें, हम लिखें, वरना ये हमको दमन की राजनीति करके और इस तरीके से जो संस्कृति बनाई जा रही है, वो जो नई पीढ़ी आएगा वो इसी संस्कृति को आगे लेकर जाएगी, तब हम कहाँ रहे। साथियों, मैं बदलना चाहते हुए यही कहना चाहूंगा कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के दिन रेला के तरफ से नहीं, बल्कि और भी हमारी सांस्कृतिक एक पहलकदमी अभी हुई है, मीटिंग हुई है, जिसमें इप्टा के भी साथी लोग और अलग अलग दल के साथी लोग शामिल हुए थे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक कन्वेंशन तो ठीक है अपने जगह में, लेकिन सड़कों में कलाकारों को उतरने की जरूरत है, सांस्कृतिक कर्मियों को सड़कों में उतरने की जरूरत है। इस भाईचारा को, गंगा जमुना तहजीब को जो है, एक हम कैसे इसको हमला है इसके ऊपर उसको बचा सके, इसके लिए 10 दिसंबर को सभी राज्यों के कलाकारों से हमारा एक आह्वान है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको करें कि 10 दिसंबर को हम सड़कों पर उतरें और अपनी आवाज एक
सांस्कृतिक प्रतिरोध की स्वर की आवाज को बुलंद करे, यही। जी, शुक्रिया, शुक्रिया कलादास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो न्योता दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम एक और गीतकार को बुलाएं, एक नज्म जो मैंने कुछ अरसा पहले लिखी थी, मुझे लगा मैं वो सुनाता चलूं, क्योंकि उसे पिरोया जा सकता है जैसा भी बोला गया उसी जबान में। और इसका उन्वान है काला सूट। तुम गुदवालो अपनी आस्तीन अपने गरेबा पे अपना ही नाम। तुम गुदवालो अपनी आस्तीन अपने गरेबा पे अपना ही नाम। किसी भारी भरकम देश के राष्ट्रपति को बना लो अपना मेहमान। हर आधे घंटे पर दूरदर्शन पर विराज कर हमें समझाओ विकास का पहाड़ा। दुहाइयां दो मंच पर चढ़कर हमारे नाम पर। सियासत गरीब के नाम पर होती है, उसके काम की नहीं होती। सलामी लो बंदूकों की तोपों की मेरी बला से। मैं तो इतना जानता हूं मेरा हल भी उसी लोहे का बना है जिसकी नुमाइश कभी नहीं होगी, जिसकी नुमाइश कभी नहीं होगी। क्योंकि वो सिर्फ एक काम जानता है, धरती को चीर कर अन्न पैदा करना। हल किसी का खून नहीं कर सकता, जान नहीं ले सकता, इसलिए सलामी के काबिल भी नहीं। मेरे घर की दीवार से टिका वो मरसिया कह रहा होगा, कोई शोक गीत बुन रहा होगा। मैं छोड़ आया हूं उसे दीवार से टिकाकर, एक कोने से लगाकर। मैं छोड़ आया हूं भौचक्का माँ, बिलखते 3 बच्चे, एक सदमे में डूबी औरत। घर पर पड़ी उल्टी चरपाइयां गवाह हैं कि उन पर बिछौने बहुत दिन से नहीं पड़े। माँ अब ऊपर नहीं सो पाएगी, उसकी मसहरी की निवाड़ बहुत काम आई मेरा वजन उठाने में। मेरे जीने का वैसे भी क्या मतलब था, जिंदा था तो गरीबी की रेखा के नीचे ठुसी एक संख्या था। अब पुलिसिया रिकॉर्ड में एक संख्या हूं। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। पेड़ से लटक कर एक संख्या सिर्फ बदल पाया हूं, इस किताब से उस किताब तक। महाजन की बही में सूद के साथ दर्ज, घर की दीवारों पर उकेरे फाकों के दिन। बाप की बीमारी पर उठाया उधार, माँ की मुंह चिढ़ाती पेंशन पासबुक। छप्पर में छुपाए बच्चों के दूध के पैसे, सब एक संख्या भर हैं। दरिया किनारे फूकने के बाद सब लौट जाएंगे अपने अपने घर। दरिया किनारे फूकने के बाद सब लौट जाएंगे अपने अपने घर। मेरे नाम की कोई तख्ती नहीं लगेगी कहीं। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा नाम, क्योंकि तुम ही गुदवा सकते हो अपनी आस्तीन पे अपना नाम। मैं तो ठहरा राम किनकर, जिला यावतमल, किसान, 26 जनवरी, खुदकुशी। शुक्रिया। तो ये एक नज्म थी इस दौर की, जो हमारी त्रासदी है उसको देखते हुए इर्द गिर्द जो घटी लिखी गई थी। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक मजबूत गीतकार, और वो अपनी नज्मों से या गीतों से हमें नवाजेंगे, शंकर सिंह साहब, जो कि मजदूर किसान मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान से आते हैं। और उन्होंने बहुत उम्दा अपने कई किरदार निभाए हैं, अलग अलग रोल में आरटीआई के बहुत बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं। और वो अपने कुछ गीत हमारे साथ साझा करेंगे। तो मैं बुला रहा हूँ शंकर सिंह साहब को। शंकर सिंह साहब अगर चाहें तो आप लाइट जला भी सकते हैं, और वरना आपके, जी, आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। जी शंकर सिंह साहब, ये आपको शम्मा महफिल जाती है। जी आप चाहें तो हाँ थोड़ा, जी कोई मसला नहीं, आप साफ दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा। जी ठीक है। हाँ। तो मैं राजस्थान में एक गांव है देवडुंगरी, राजसमंद जिले में, वहां पे हूँ। और वहाँ एक संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन का कार्यकर्ता हूँ। और हम काफी लंबे समय से लोगों के बीच में जहाँ काम कर रहे हैं। और ये आज जो गीत और संघर्ष के गीतों की बात हो रही है,
हमारे यहाँ आंदोलन में एक समूह गीतों की रचना भी वो समूह करता है, गीतों को गाने का काम भी एक समूह में होता है। तो आज मेरे दो साथी मेरे साथ, मैंने उनको विशेष अनुरोध किया है, ईश्वर और कमल, वो भी यहाँ मेरे साथ हैं, जो वो मेरे उनका भी स्वागत है वो इसमें साथ देंगे। जी। सबसे कठिन दौर है ये इस समय, क्योंकि जो नफरत की मतलब राजनीति ही नफरत के उसमें चली गई है, और वो उसको बेस बना रहे हैं, वो उसको आधार भी उसी को बना रहे हैं। कि राजनीति में इन्होंने ठान लिया कि अभी हम और कोई जरिया नहीं है वोट लेने का, तो वोट लो तो ही नफरत के बेस के आधार पर ही वोट लो, ताकि आप कितना कहाँ लोगों के बीच में नफरत नहीं है। लेकिन जब सत्ता में बैठने वाली जो सत्ताधीश हैं, सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो पार्टी अगर ये सोच ले कि मुझे तो अपना एजेंडा यही है कि मुझे वोट ही इसी से मिलेंगे, या बदमाशी कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो बदमाशी में फिर ये मीडिया की तरफ से और सत्ता की तरफ से भी ये करना कि ये वो मुसलमान है, जिसने ये किया वो मुसलमान है। तो आप एक ऐसा संदेश देना चाह रहे हो कि इस नफरत को ज्यादा हवा देते हो, तो वो सत्ता का चरित्र जो है वो बदल रहा है, और वो इस संविधान के बिल्कुल विपरीत है। संविधान को वो पसंद भी नहीं करता है। जिस देश में गॉडसे की पूजा की बात की जाती है, वहां आप कैसी राजनीति का वो आ रहा है। इसलिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस यात्रा में गीत क्या होंगे, संगीत कैसे होंगे, क्या टोलियां जो लोकल अपना कुछ गाती हैं, क्योंकि आजकल लोक संस्कृति भी बहुत गड्ढमड्ढ हो गई है, क्योंकि लोगों के बीच में जो चीजें चल रही है वो पाखंड को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब वो पाखंड है, और वो पाखंड अब एक तरह की हिस्सा बन गया है, आपको जीने का हिस्सा भी वही बन गया, वो पाखंड है। तो पाखंड के खिलाफ कबीर ने भी खूब अपना भजन लिखे हैं, गाए, वो लिखे हैं कबीर ने, और उसको गांव में गाते भी हैं। तो गाना एक और जीना एक बहुत फर्क भी है, क्योंकि लोग गा भी लेते हैं लेकिन उसका जीना बड़ा कठिन है। तो हम जब यहाँ ये संगठन का ये 1990 में ये संगठन की स्थापना हुई थी, तो जब हम गांव में जाके लोगों के बीच में काम कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था उस समय कि गीत संगीत लोगों की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम अगर इसको बातचीत का जरिया बनाए, तो इसलिए मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि ये गीत मैंने लिखे नहीं है, ये आंदोलन के दौरान, संघर्ष के दौरान बनते गए, और कुछ साथियों ने जो लिखा उनको भी हमने बेखूबी उनको जगह जगह हमने काम में भी लिया, और जो गीत हमें मिला अच्छा लगा तो उसको हमने भी एक अपना आधार बनाया कि लोगों के बीच में हम जाके गाएंगे और बात भी करेंगे। तो मैं वो सूचना के अधिकार का संघर्ष की लंबी कहानी है, वो कहानी नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें क्या क्या ऐसे हिस्से थे जब गीतों ने उसको ताकत दिया, गीतों ने उसको बल दिया। तो एक गीत, एक आह्वान गीत जो प्रचलित था कहीं रामलीला में और कहीं गा रहे थे, उसकी दो कड़ी मैं आपको सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, और हमारे ये दोनों साथी भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। छाती पर पैणा पड़िया नाग रे धोरा वाला देश, तेरी छाती के ऊपर सांप पड़े हैं और तुम जाग। धोरा वाला देश राजस्थान को माना है ऐसे। छाती पर पैणा पड़िया नाग रे धोरा वाला देश जाग रे धोरा वाला। छाती पर पैणा पड़िया नाग रे धोरा वाला देश जाग रे धोरा वाला। उठ खोल ओढ़ी थी आखड़िया नैनारी मीठी नींद छोड़ी, उठ खोल ओढ़ी थी आखड़िया नैनारी मीठी नींद छोड़ रे। रात नहीं अब दिन युगियो सपना रो झूठो मोह छोड़ रे। रात नहीं अब दिन युगियो सपना रो झूठो मोह छोड़। तारी आँखा मेरा चरया जंजाल सुवाणी रातरा। तू कोट बनावे यूं जुगरा, तू झूठोड़ी बोती बातारा। पण बीत गयो सो गयो बीत, पण बीत गयो सो
अब उनरी झूठी आस त्याग रे तोरा वाला देश जाग रे तोरा वाला। एक अंतरा आगे कवि कहता है इसमें, रे देख मिनक मुरझाय रयो मरने से मुश्किल है जीनो, रे देख मुरझाय रयो मरने से मुश्किल है जीनो। हे खड़ी हवेलियां हंसे आज इन झोपड़ियां रो दुख दूनो, खड़ी हवेलियां हंसे आज इन झोपड़ियां रो दुख दूनो। हे धनवाड़ थारी कायारा भक्षक बढ़ता जावे, तू जाग खेत ना रखवाड़ा, तू क्या बाड़ खेत में खावे। ए जगह उजाड़े झोपड़िया, ए जगह उजाड़े झोपड़िया, उनमें लारे तू लगा आग रे तोरा वाड़ा देश जाग रे तोरा वाड़ा देश जाग रे तोरा वाड़ा। ये गीत प्रचलित है, लोगों के बीच में है, तो हम इन्हीं गीतों को अपने संघर्ष का हिस्सा भी बनाया। हमारे मोहन बा है जो अभी तो नहीं है, वो नहीं रहे, लेकिन वो कबीर को गाते थे। तो वो रात को भजन गाते हैं कबीर के, लेकिन वो कबीर को गाते गाते इस संघर्ष के गीतों में उनका आना, और उन्होंने फिर अपने गीत चालू किए। इसमें एक दो कड़ियां मैं आपको सुनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं। जी जी। अरे जमानो चोरा को रिश्वत खोरा लूट मचाई रे, जमानो चोरा को, अरे जमानो चोरा को रिश्वत खोरा लूट मचाई रे, जमानो चोरा को। अरे पहली माला डाकुर बाया जंगला माये रहता हो, पहली माला डाकुर बाया जंगला माये रहता हो। अरे या बेवाड़ा डाकू तो बंगला में घुस गयो, जमानो चोरा को, डाकू तो बंगला में गयो, जमानो चोरा को। अरे पहली वाला ठाकुर बाया बंदूका वो मारता हो, पहली वाला ठाकुर बाया बंदूका वो मारता हो। अरे अबे वाला ठाकुर तो कलमाऊ मारे हो, जमानो चोरा को, ठाकुर तो कलमाऊ मारे हो, जमानो चोरा को। अरे पहली वाला ठाकुर बाया रात माये लुटता हो, पहली वाला चोर खोया रात माये करता हो। अरे या बेवाड़ा चोर तो बाजार में घुस गया हो, के राज चोरा को, तो वो मोहन बा ने जो विश्लेषण किया, उन्होंने कहा कि पहले वाले चोर बंदूकों से मारते थे, आज वाले कलम से मारते हैं। तो कलम में क्या लिखते हैं, और वो नहीं बताते थे। वो जब हम जो बात कर रहे थे, हम संविधान में जीने का हक दिया है, लेकिन हम जीने का हक की बात करो तो वो कहता है कि आपको जीने का हक कैसे मिलेगा, वो हम जानना चाह रहे थे। और उसी से ये आंदोलन खड़ा हुआ, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीने का अधिकार से जानने का अधिकार, जानने का अधिकार से जीने का अधिकार, दोनों का एक बहुत बड़ा तालमेल है, क्योंकि ये दोनों आपस में इतना महत्वपूर्ण जुड़े हुए हैं। तो उसमें हमारे एक साथी है विनय चरण, उन्होंने एक गीत उस आंदोलन के दौरान ही लिखा। उन्होंने कहा कि हमें ये हक चाहिए, तो मैं ईश्वर से अनुरोध करूंगा कि वे इसको इस गीत को चालू करें। जानने का, मेरे सपनों को जानने का हक रे, मेरे सपनों को जानने का हक रे, जो सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे वोटों को ये जानने का हक रे, मेरे वोटों को ये जानने का हक रे, जो एक दिन बड़े बड़े वादे मेरे 5 साल का नहीं,
क्यों एक दिन बड़े बड़े वादे, फिर 5 साल काम नहीं। मेरे राम को ये जानने का हक रे, रहमान को ये जानने का हक रे, रहमान को ये जानने का हक रे, मेरे राम को ये जानने का हक रे। बाहर सड़कों पे क्या सबर इंसान नहीं, क्यों पूर्ण बाहर सड़कों पे क्या सबर इंसान नहीं। मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, मेरी जिंदगी को जीने का हक रे, अब हक के बिना भी क्या जीना, ये जीने के समान। इस तरह से जो गीत हमें साथियों की तरफ से भी मिलते रहे और कुछ गीत आंदोलन में बनते भी गए। जैसे हम जब इसको कहें कि हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारा पैसा हमारा हिसाब, तो ये क्या है? तो 2 लाइन का एक मारवाड़ी में, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मारो छोटो सो गाँव, मारो छोटो सो गाँव, जिम्मे कतरा आया दाम, जिम्मे काहीं भी यो काम, तो माने बताबो रे, ताने बताबो रे, तो माने बताबो रे, ताने बताबो रे। इस तरह से हम गीतों को, और आज जरूरत है जैसे इस यात्रा में अगर हम कबीर को गाएं, और क्योंकि आपको नफरत छोड़ने के लिए, नफरत छोड़ना है तो क्या गीत भी अपने ऐसे क्या होंगे जिनके बीच में हम गीतों के साथ लोगों के बीच में जाएं। तो जैसे कबीर की एक, मैं कमल और ईश्वर से कहूंगा कि मैं मेरी तो इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन ये कबीर की 2 लाइनें जरूर गाएं। जी जी जरूर जी। तो कबीर साहब एक भजन में लिखते हैं कि चोरा के संग चोर बन जावे, बदमाशा में टेढ़ो। चोरा के संग चोर बन जावे, बदमाशा में भेड़ो। चोरी करके भागने लागो, चोरी करके भागण लागो, पकड़ने वालो तुम, पकड़ने वालो तुम। भेद बता मेरे अब तू, साची करनी डरता क्यों। भेद बता मेरे अब तू, साची करनी डरता। राजा के संग राजा बन जावे, फिकियारी में बैठो। राजा के संग राजा बन जावे, फिकियारा में भेड़ो तुम। तो होकर मांगन लागो, तो होकर मांगन लागो, बन पालो तुमको, बन पालो तुमको। जी शुक्रिया बहुत बहुत जी आप लोगों का, और बहुत उम्दा रहा ये जो आज का हमारा आपके साथ सफर रहा। इसके जो टुकड़े आपने अलग अलग जबान से भी उठाए वो भी बहुत बहुत अच्छे थे, उम्दा थे। थोड़ा सा मारवाड़ी का भी एक पुट आ गया और कबीरवाणी का भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शंकर सिंह साहब, आपके पूरे इस कविश को, इस पूरी मेहनत को सलाम। और हम लोग फिर जुड़ेंगे जल्दी ही। और मेरा भी ये कहना है कि जो आज साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज शाम हमारे साथ हैं, उन सबसे कि अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर, अपने कांटेक्ट डिटेल्स जरूर शेयर कर दें, ताकि आइंदा होने वाले किसी भी प्रोग्राम के बारे में हम आपको बता सकें। और पूरी टीम, खासतौर से अमृता का और शबनम का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही कम समय में बहुत उम्दा इस प्रोग्राम को
खड़ा किया, और मुझे लगता है हर बार की तरह जिस तरीके से शबनम करती हैं कि वो लोगों को साथ ले आती हैं, वो इस बार भी कामयाब रही, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया शबनम का। और अमृता ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको टेक्निकली मैन्यूवर किया, तो थैंक्स अ लॉट टू यू टू अमृता। एंड वी विल काइंडली लीव योर नंबर्स बिफोर इन द टेक चैट बॉक्स बिफोर लीविंग। और आज शाम हम सबका यहाँ आने का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सबका यहाँ इकट्ठा होने के लिए हम सभी का शुक्रिया। और मुझे लगता है कि एक there's a term called तगय्युर which means metamorphosis और change। और शबाब आप सब लोगों को पता है, यूथ जिसको आप कह सकते हैं हमारे आज जवान होना। तो जोश का एक शेर है, मुझे लगता है कि उससे अगर आज की शाम के इस वाले पड़ाव को हम लोग अंजाम दें तो बहुत उम्दा रहेगा। जोश मलियाबादी कुछ इस तरीके से कहते हैं कि काम है तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। काम है तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो 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 इनकलाब। तो इसी के साथ आज के साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इजाजत दें, मैं रजा हैदर हूं और हमारे साथ पूरी टीम रही, उन सबका शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब। अब हम ये मीटिंग